I am getting so many requests from past few days through my Insta DMs, YouTube video comments that please do a review video on textbook of Homeopathic Therapeutics in Gynecology by Dr. Rohit Deshpande. So here I am with the review video. Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. Hey guys, myself Dr. Sujata, a BHMS internee from Odisha. So here in this video, I will give you a short, quick and student perspective review of this book. So the name of the book is Textbook of Homeopathic Therapeutics in Gynecology. Author name is Dr. Rohit Deshpande. Publications is Deshpande Publications and it has 300 pages. Main theme of this book. So the name suggests textbook. Textbooks generally means it is going to be so much helpful for students. Then textbook of Homeopathic Therapeutics in Gynecology. So that means this book basically contains 54 gynecological topics or 54 gynecological diseases, and each disease has its top 10 homeopathic medicines. That means in this book the disease are explained like first a disease, its description, its some common symptoms of that particular disease, and then a list of top 10 homeopathic remedies for that disease, and after that each remedy is explained with some symptoms. So कैसे symptoms describe किया गया है ये आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने से ही पता चल जाएगा. लाइक इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 पेज का है, उससे आपको पूरे बुक्स के मेन थीम के बारे में पता चल जाएगा. दैट फर्स्ट थिंग, इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल थेराप्यूटिक्स. सो कॉन्स्टिट्यूशनल थेराप्यूटिक्स मीन्स इसमें जो भी मेडिसिन के सिम्टम्स दिया गया है वो क्लिनिकल कंडीशन के साथ साथ उस मेडिसिन की जो फिजिकल जनरल सिम्टम्स एंड जनरल मोडालिटीज़ आर ऑल्सो इंक्लूडेड. दैट मेक्स द मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम अदर मेडिसिन. So that's about constitutional therapeutics. And then sir ने और एक चीज़ mention किया है, that is about 11th medicine. So like we all know that homeopathy believes in individualization. So अगर हम किसी gynecological case में सिम्टम्स, हमारे जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एक मेडिसिन इंडिकेट कर रहा है जो कि सर ने यहाँ पे उस डिजीज़ कंडीशन में टॉप 10 में इंक्लूड नहीं किया है, देन दैट विल बी द 11th medicine of that particular disease condition, or that is the most appropriate medicine for our patient. So we should definitely go for that medicine. So basically that's all about the main theme of this book. So now about the author. Dr. Rohit Deshpande sir is a renowned homeopathic physician from Nasik, Maharashtra. He is also the author of Clinical Comparative Mathematics across the systems of medicine and also the textbook of homeopathic therapeutics in ophthalmology, and both of these books are his best seller books. And also मैंने ये दोनों ही books के ऊपर review video already बनाया है. I will give you the link in the description, so please don't forget to check the description. I will give you an example so that आपको एक आइडिया हो जाएगा दैट इसमें आपको डिजीज़ कंडीशन के साथ मेडिसिन किस वे में मिलने वाला है. So I will just give you an example of a common disorder, that is amenorrhea. So amenorrhea की first description is amenorrhea is defined as the absence of menstruation. Females who have missed at least 3 menstrual periods in a row are said to have amenorrhea, as do girls who haven't begun menstruation by the age of 15. So that's about a short description of amenorrhea. Now the common symptoms. So the main sign of amenorrhea is the absence of menstrual periods, and some associated symptoms are milky nipple discharge, hair fall, headaches, vision changes, etc. So और भी बहुत सारे common symptoms सर ने mention किया है. And then the top 10 homeopathic medicines, the list of top 10 homeopathic medicines, that is Pulsatilla, Conium, Dulcamara, Graphitis, Calicarb, Lycopodium, Senecio, Silesia, Sulfur and Sepia. So now I will explain one medicine so that you can get an idea that Pulsatilla. Pulsatilla is amenorrhea from fear, fright, getting fit, weight, that about the causation. Then amenorrhea in elderly women, hot patient, thirstless, and desires for spicy food and aversion to butter, fatty food, fruits, meat, general aggravation from wetting fit, mental excitement and general amelioration from discharges. So वैसे ही आपको बाकी 9 medicines भी वैसे ही इसी वे में मिलेगी. And also
सो बेसिकली इसमें आपको 54 डिजीज़ कंडीशंस में ईच कंडीशन के टॉप 10 मेडिसिन ऐसे ही इसी वे में डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. Now the scope or the uses of this book. So the first thing is that if you are a student, like if you are in 3rd BHMS or 4th BHMS, because we all know that 3rd BHMS में एक सब्जेक्ट है गायनिकोलॉजी एंड 4th BHMS में भी गायनिकोलॉजिकल टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. सो फॉर 3rd and 4th BHMS दिस बुक इज़ अ मस्ट हैव. एंड ऑल्सो आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा. लाइक हम एग्जाम्स में जैसे आंसर्स लिखते हैं या फिर जैसे हम नोट्स बनाते हैं उसी वे में ऑलरेडी बुक में दिया गया है. सो यह हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फॉर एग्ज़ाम पर्पोज एंड नॉट ओनली फॉर थ्योरी एग्ज़ाम्स बट ऑल्सो फॉर वाइवा एग्ज़ाम्स एज वेल. बिकॉज जैसे कि हमें पता है बाकी कुछ होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बुक्स में एक मेडिसिन उसके सिम्टम्स देन एक मेडिसिन उसके सिम्टम्स ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इसमें ऑलरेडी सर ने एक लिस्ट दिया है फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब किया है. सो इसलिए फॉर क्विक रेफरेंस मतलब वाइवा के लिए पढ़ने के लिए भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिजीज़ एंड इट्स टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन एक लिस्ट भी मिल रहा है हमें. तो वो हमें क्विक रेफरेंस के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है. सो फॉर ए स्टूडेंट दिस बुक इज़ मस्ट हैव. नाउ द सेकेंड स्कोप that if you are a homeopathic physician then this book is going to be so much helpful for you in your clinical practice because जैसे कि मैंने बताया इसमें एक डिजीज़ कंडीशन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ कॉमन सिम्टम्स भी दिया गया है. सो ये हमें एक क्विक रेफरेंस क्विक क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा एंड ऑल्सो फॉर क्विक रेफरेंस टू आवर गायनिकोलॉजिकल केसेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. एंड ऑल्सो दिस बुक हैज़ 54 गायनिकोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशंस. सो इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन हमें क्लिनिकली वो केसेस फेस करना पड़ता है. सो इट्स गोना बी सो मच हेल्पफुल फॉर आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल. About the look of this book, so it's baby pink in color and like the name suggests gynecologies and we all know that pinkish color or baby pink color are girlish color, so that's why it's baby pink in color. And girls अगर आप भी मेरी तरह कोई pink color का book ढूंढ रहे हैं then this book is just for you. So and also it has this symbol that we all know that indicates the gynecology and this has this hard cover and इसमें एक paper cover भी है जो कि सेम है लुक्स में एंड हार्ड कवर एंड देन द पेजेस आर रियली थिक एंड ग्लॉसी एंड द लेटर्स आर रियली ब्यूटिफुल. लाइक सर के बाकी दोनों बुक्स भी लुक्स वाइज 10 on 10 थे. सो दिस बुक हैज़ ऑल्सो दैट 10 on 10 ऑन लुक्स एंड वी लाइक हमें चाहिए ऐसे कुछ सुंदर दिखने वाले बुक्स हमारे सेल्फ्स में. सो इट्स लाइक वन ऑफ दोज बुक्स. सो नाउ अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ दिस बुक. So I think that this book has two limitations. First thing, सर ने इसमें बताया है that it contains constitutional therapeutics. So constitutional therapeutics is incomplete without mental general symptoms. So इसमें mental symptoms included नहीं है. सर ने describe ये किया है that मेंटल सिम्टम्स इसलिए इंक्लूडेड नहीं है जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते. लाइक ठीक है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते लेकिन आई थिंक कि अगर मेंटल सिम्टम्स भी इंक्लूडेड होते तो और ज़्यादा अच्छा होता. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट दिस बुक डजंट कंटेन एंड इट्स ऑब्वियस थिंग डजंट कंटेन डोज एंड पोटेंसी एनीथिंग अबाउट डोज एंड पोटेंसी. सर ने डिस्क्रिप्शन ये दिया है एंड ऑल्सो वी ऑल नो दैट होम्योपैथी बिलीव्स इन इंडिविजुअलाइजेशन. सो इट्स अप टू द फिजिशियन कि उसके पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हमें पोटेंसी एंड डोज सिलेक्ट करना है. सो दैट्स वाई दिस बुक डजंट इंक्लूड एनीथिंग अबाउट पोटेंसी और डोजेस. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट और जिसके लिए आप लोग वेट करते हो दैट व्हाट इज़ माई ओपिनियन वेदर आई शुड सजेस्ट यू टू बाय दिस बुक और नॉट. सो फर्स्ट थिंग अगर आप स्टूडेंट हो 3rd BHMS और 4th BHMS किसी में भी हो देन प्लीज़ जस्ट गो फॉर दिस बुक. लाइक आई विश कि अगर मेरे 3rd ईयर में ये बुक मेरे पास होता तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली थी. सो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन जस्ट गो फॉर दिस बुक. लाइक यू मस्ट हैव दिस बुक. ओके
देन इफ़ यू आर होम्योपैथिक फिजिशियन, अगर आप एक न्यू होम्योपैथिक फिजिशियन हो, लाइक अभी न्यूली क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, देन गो फॉर दिस बुक. ये आपको क्विक रेफरेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा. लाइक आप क्विक रिविज़न भी कर सकते हो, क्विक रेफ़र भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में ही. एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ढूंढ रहे हो कोई पिंक कलर का बुक, देन दिस बुक इज़ जस्ट फॉर यू. पिंक कलर के साथ साथ, लुक्स के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है. एंड इट्स अबाउट गायनिकोलॉजी एंड we are all so much interested in gynecology, so yeah, just go for this book. And it's one of those books that we want in our shelves. So that's all about this video and about this review of the book. आई होप दैट मेरे प्रीवियस वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो. सो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो आप मुझे अगर चाहते हैं कि मैं कोई और बुक्स की रिव्यू वीडियो भी बनाऊँ, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड ऑल्सो कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो वीडियो के लिए, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.